Dilemma that Rahul Gandhi seems to be facing because, Swati, it's been over a week now, ever since the election results came out, and a handsome win for Rahul Gandhi from both the seats of Wayanad and also in Raebareli, but it still seems that he is unsure on which seat that he should decide to represent. Absolutely. Even the victory margin, if you take a look at that in Raebareli and in Wayanad, the margin is very slim. And after going up from 1 seat in 2019 to 6 in the state, this time we're talking about the Congress and its performance, and emphatic win in both Amethi and Raebareli. Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra were in Raebareli to kickstart the statewide Abhar Sabha, or the Thanksgiving Yatra, looking to consolidate the gains. So while India Bloc bagging 43 seats to surge past the NDA, reinvigorated Rahul Gandhi said that the message from Uttar Pradesh was clear, and that message was also being resonated on part of the country, that the people of India want to replace the BJP. Taking on directly on the Prime Minister, Rahul Gandhi also claimed that had his sister Priyanka Gandhi, she would have contested from Varanasi, then she would have defeated Prime Minister Modi. और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। और अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। And here is why Congress is sounding so confident. The party won 6 seats in state in the 2024 Lok Sabha polls, and its ally Samajwadi Party backed 37. Eyeing scope of resurgence, Congress is now taking out a Abhar Yatra in all the assembly seats in UP. So the BJP, however, sees this as no basis of these assertions that have been made by Rahul Gandhi, and calling out when it comes to saying that such kind of a picture that is now being portrayed, why didn't then actually Priyanka Gandhi Vadra actually contest from the seat of Varanasi? Absolutely. Now, we have some reactions lined up. Let's take a look at what Ajay Alok and Deepak Singh are saying. अरे ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन कमाल की बात है कि इमेजिनरी सिचुएशन में भी राहुल गांधी खुद नहीं लड़ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। यहाँ पे भी बहन को ही आगे कर दिया। अब भाई देवी, बहन को लड़ने से रोका किसने था, ये भी बताए थे जरा। परिवार ने रोक दिया कि आपने रोक दिया? बेचारे राहुल गांधी। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी जी अगर लड़ने को तैयार होती, जो मुश्किल से मोदी जी जीत कर गए हैं वो हार कर जाते लंबे अंतराल से। और राहुल गांधी जी ने बड़ा संदेश दिया है, इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराया है। Well, Priyanka Gandhi has never contested an election, but Rahul Gandhi feels that had she contested, she would have defeated Narendra Modi from Varanasi. Let's take a look at the factors. Let's take a look at where both of them stand in terms of their political careers. Narendra Modi, 3-time MP from Varanasi. Priyanka Gandhi hasn't contested any polls, so no elections contested by Priyanka Gandhi. Narendra Modi held 206 rallies for the Lok Sabha polls. Priyanka Gandhi held 108 rallies for the Lok Sabha polls 2024. Let's move on. Let's take a look at more pointers in his third term as the Prime Minister. So Narendra Modi is the Prime Minister for the third time in the country. Meanwhile, Priyanka Gandhi hasn't held any public office. She was, remember, given the charge of Uttar Pradesh as a General Secretary. Apart from that, no elections contested. Narendra Modi has led BJP to the third successive win in Lok Sabha. This is Modi 3.0 we're talking about. On the other hand, Congress got 1 MP seat when she was the General Secretary of Eastern Uttar Pradesh. This is where both of them stand in terms of their political careers. But Rahul Gandhi feels that Priyanka Gandhi could have defeated Narendra Modi. Back to Amita.
Well, that's the point, because so far it's been over a week ever since the election results have been announced, viewers, and till the time where it seems that Rahul Gandhi hasn't been able to decide on which seat to represent in the Lok Sabha. Now, UP prospects also loom large on the decision as far as the cadres there, because they have been seeking that Rahul Gandhi stays put in Raebareli, as it could help with the party's revival in politically significant state. Another decision that is likely to be taken before the 17th of June, because as any Lok Sabha candidate who wins from multiple seats has to give up one seat within 14 days of the election results being announced. एक बड़ा फैसला जो है राहुल गांधी के ऊपर है, कौन सी सीट चुनेंगे। कांग्रेस कमेटी लगातार कह रही है कि रायबरेली की सीट नहीं सी, वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने सर्वसम्मत से कहा है कि राहुल जी को निश्चित तौर से यहां पर रहना चाहिए और काम करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि वो रायबरेली से वो निश्चित तौर से एक बड़ा फैसला जो है राहुल गांधी के ऊपर है, कौन सी सीट चुनेंगे। कांग्रेस कमेटी लगातार कह रही है कि रायबरेली की सीट नहीं सी, वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने सर्वसम्मत से कहा है कि राहुल जी को निश्चित तौर से यहां पर रहना चाहिए और काम करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि वो रायबरेली से वो निश्चित तौर से Gandhi has now to take the decision on whether he is going to keep Raebareli or Wayanad. Both local units of the Congress in Raebareli and Wayanad want Rahul Gandhi to stay in that particular constituency. Why Raebareli? Because it is politically significant seat and a state as well. We're talking about Uttar Pradesh here. INDI has performed well in UP, and exactly for that reason Rahul and Priyanka took out that Abhar Sabha, and that's why people of Raebareli want that this should stay with the Gandhi family, since it's a Gandhi bastion. All right, let's introduce our guest joining us here on the Morning News. Good morning to you, Anila Singhji, BJP spokesperson. We also have Varun Purohit, political analyst. Good morning to both of you. Varun Purohit ji, first up to you, because the question that is now being raised by the BJP in particular, why isn't Rahul Gandhi so hesitant when it comes to even pitching for himself? They call it as a hypothetical situation. Then why did neither Priyanka Gandhi nor Rahul Gandhi contest from Varanasi? देखिए, मैंने कई बार कहा है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो हिंदी पट्टी में कांग्रेस को बहुत फायदा होता है, और मैं तो 20 साल से बात कर रहा हूं। जब बेल्लारी का चुनाव हुआ था, सुषमा स्वराज जी, सोनिया गांधी जी लड़ी थी। जब से वी आर डिमांडिंग प्रियंका गांधी को राजनीति में, सक्रिय राजनीति में लाना चाहिए, चुनावी राजनीति में लाना चाहिए। और ये बहुत बेहतर होता है कि अभी अमेठी रायबरेली के चुनाव हुए, उसमें दोनों जने अमेठी रायबरेली से लड़ते तो सिचुएशन ही अलग होती। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा है। प्रियंका गांधी आज भी कहीं से भी चुनाव लड़ेंगी, वो चुनाव जीतेंगी। और प्रधानमंत्री जी का वाराणसी का हमने देखा 5 लाख वोट जो कम हो गया, वो किस लिए हो गया? तो उनके खिलाफ एक असंतोष था देश के अंदर, डिससेटिस्फेक्शन था, इसलिए उनके खुद 1.5 लाख से जीते। 75,000 का तो फर्क ही, अगर कैंडिडेट स्ट्रांग होता तो मोदी जी को भी जीतना मुश्किल हो जाता। तो गलत नहीं कहा राहुल गांधी ने, लेकिन मैं आज भी ये मांग करता हूँ। लेकिन ये बात कहाँ से फेयर है? जो हुआ ही नहीं उसकी चर्चा करने का क्या मतलब है? एक पूरा मौका था आपके पास चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ लेती प्रियंका। We also have Anila Singh on the broadcast. It's very easy to now say, had this been done, then this would have happened. Clearly, back then nobody knew how Uttar Pradesh is going to respond. My Ram Ram to all. And you know what Rahul Gandhi ji has said, that is a very, very immature statement. And he is the face of Indian National Confused Party. That is why he keeps on giving confused statements, and that is the sole reason of failure. They are mighty happy. वो लड्डू की जगह बर्फी खा रहे हैं, वो फेल होकर भी बहुत खुश हो रहे हैं। उनको लग रहा है पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मार लिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार ही बनी है। साहब, आपकी सरकार नहीं बन पाई है। अब तो 99 के फेर में पड़ चुके हैं। But can you really call anything immature at this point? Because Anila Singh, आप देखिए 400 पार तो आपने कहा था वो नहीं हुआ, और राहुल गांधी और उनके लोग कहते थे कि आपकी सीटें घटेंगी। सीधी सी बात है, आप सक्सेस को सलाम करते हैं और साक्षात को प्रमाण नहीं चाहिए होता है, और सब जानते हैं सरकार किसकी बनी है। और जो केवल और केवल 99 की सीट लेकर आए हैं, खुद फेल्ड हैं, बर्फी खाकर खुश हो रहे हैं। लेकिन मैम, उत्तर प्रदेश की भी तो बात करी जानी चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में आखिरकार दोनों इंडिया ब्लॉक और एनडीए का परफॉर्मेंस क्या हुआ है, उसके ऊपर भी तो इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए। वरुण जी क्या कहेंगे? राहुल गांधी आप सारी बातों का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस क्यों ना हो। अगर ऐसे था तो फिर उन्होंने 2 सीटों से चुनाव क्यों लड़ा, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो 1 सीट से ही दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? एक तो सबसे पहले मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, जो आभार रैली जो निकाल रहे हैं, आभार यात्रा निकाल रहे हैं, धन्यवाद यात्रा, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। तो नेता लोग चुनाव जीतने के बाद वापस नहीं जाते हैं, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, सब उसको फॉलो करें तो अच्छा रहे।
तो आप राहुल गांधी जी की बात करो। देखिए, मैं पहले भी, आप मेरे डिबेट्स देख लो, मैंने कहा विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं, वो सिचुएशन हुई। और मैंने एक बात और पॉइंट आउट करी थी कि 4 जून को विपक्ष को दुख होगा कि बहुत मजबूती से चुनाव और अच्छे कैंडिडेट लड़ाते तो ज्यादा सीटें आती। वो पोजीशन ये किसी की समझ में नहीं आई चुनाव से पहले, क्योंकि हम तो ग्राउंड पे रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, हमको पता है जनता मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, उनकी आर्थिक नीतियों से तो इसका परेशान। फायदा फिर आपको पूरी तरीके से उठाना चाहिए था ना सर? बिल्कुल उठाना कांग्रेस पार्टी चाहिए था। को पूरी तरीके से उठाना चाहिए था। बिल्कुल उठाना चाहिए था। मैं कह रहा हूं ना, मैंने पहले भी कहा कि टिकट ढंग से देते तो आज की स्थिति उलट होती। मोदी जी की 240 नहीं, जो राहुल गांधी जी ने 150 के लिए कहा था, 150 सीटें। वरुण पुरोहित जी, एक पॉइंट जो आप मिस कर जाते हैं बार बार, अभी ऑफ कोर्स यू कैन डिस्कस, यू नो, इफ दिस वुड हैव हैपेंड एंड दिस वुड हैव बीन द आउटकम, लेकिन बीजेपी की जो सीटें हैं वो INDI कंबाइन से भी बहुत ज्यादा है। एंड अनिला सिंह, द क्वेश्चन इज बीजेपी अ लिटिल बिट रैटल्ड, क्योंकि लोकसभा में जो परफॉर्मेंस रहा है, यू नो, अमूमन दैट्स व्हाट पीपल से दैट इट डज रिफ्लेक्ट व्हेन इट कम्स टू असेंबली इलेक्शंस, या असेंबली का जो रिजल्ट है वो लोकसभा पर इंपैक्ट करता है। इज द बीजेपी लिटिल रैटल्ड विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ बोथ कांग्रेस एंड समाजवादी इन उत्तर प्रदेश? I will not say rattled, but definitely we are concerned about it. And I wanted to say one thing, the last time when you came to me, is what Rahul Gandhi said that अगर मेरी बहन वाराणसी से लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी जी हार जाते। तो क्यों नहीं हिम्मत करी भाई? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। 2022 इलेक्शंस उत्तर प्रदेश, it held like Congress went into elections in the leadership of Priyanka Vadra Gandhi, and what happened we know it very well. जमानत जब्त पार्टी इनकी हो गई थी। So they should not overestimate themselves. This time also, whatever seats they have won, it is because of समाजवादी पार्टी जी। अगर ये अकेले खड़े होते तो नहीं जीत पाते। एंड डेफिनेटली अगर थोड़ा भी किसी को एनालाइज करना आता हो राहुल गांधी को, थोड़ी भी तो क्या आप समाजवादी पार्टी के रिजल्ट्स को देखकर बीजेपी विल हैव टू स्टार्ट द इंट्रोस्पेक्शन इमीडिएटली? वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट एंड रीजंस आर वेरी वेल नोन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वाराणसी सीट, यू नो, I am trying to come to that point. Please allow me. बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई नहीं, अरे देखो ना, केवल 1.5 लाख की मार्जिन से जीते हैं। अगर प्रियंका खड़ी हो जाती तो ये हार जाते। अगर जातीय समीकरण का वहां पर जाकर एनालाइजेशन होता तो उनको समझ में आ जाता कि अजय राय जी को जो वोट्स मिली हैं वो और प्रियंका वाड्रा को जो मिलती, वो जमीन आसमान का अंतर है। और पूर्वांचल में जो राजनीति होती है वो जातीय आधार होती है। डेफिनेटली इट इज अ पॉइंट टू एनालाइज एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस। अब ये तो रिजल्ट्स के बाद अब ये तो चर्चा सारी पार्टियों के बीच में होगी, आखिरकार उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और यहीं पर राहुल गांधी ये बात आगे करते हुए नजर आ रहे कि आखिरकार अगर प्रियंका गांधी, उनकी बहन, चुनाव लड़ी होती काशी से तो वो जरूर जीत जाती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा देती। बीजेपी कह रही है कि दिन में सपने देख रही है कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद आप दोनों का, वरुण जी एंड ऑल्सो टू यू अनिला जी, फॉर ज्वाइनिंग अस हियर ऑन द मॉर्निंग न्यूज। फिलहाल हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी आर स्लीपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। न्यूज एंड अपडेट्स विल कंटिन्यू।